محترم حاضرین جمعہ، عربی تاریخ کے اعتبار سے ہم اور آپ ایک نئے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں جسے المحرم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ محرم کا یہ مہینہ 4 حرمتوں والوں مہینے میں سے ایک مہینہ ہے، جس میں رب العالمین نے گناہوں سے، معاصی سے خصوصی طور پر منع کیا ہے۔ حاضرین گرامی، ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ پورے سال، چاہے وہ حرمت والے مہینے ہوں یا حرمت والے مہینے نہ ہو، ہم اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی معصیت سے، گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ لیکن اگر حرمت والے مہینے ہیں تو ان میں اور زیادہ اللہ کی نافرمانی سے اور گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن موجودہ مسلمانوں کی صورتحال کا اگر جائزہ لیا جائے تو موجودہ مسلمان جو اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ میں سے قرار دیتے ہیں، ان کو جہاں گناہوں سے بچنا چاہیے تھا، وہیں پر خاص طور پر اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کا جو سب سے بڑا حق توحید ہے، اس پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اس کو غصب کیا جاتا ہے۔ رب العالمین کی ذات کے ساتھ، اس کے اسماء و صفات کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے۔ شرک جو سب سے عظیم گناہ ہے، وہ اس مہینے میں اپنے آپ کو جو مسلمان کہلاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو تعزیہ بنائی جاتی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی مشابہت اختیار کی جاتی ہے، اور یہ نظریہ اور عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ گویا کہ حسین علیہ السلام کی روح اس تعزیے کے اندر موجود ہے، اور ان کو عالم الغیب تصور کیا جاتا ہے، ان سے نظر و نیازیں کی جاتی ہیں، ان سے وہ دعا و مناجات کی جاتی ہے، ان سے اپنی ضرورتوں کا سوال کیا جاتا ہے، اور ان کو حاضر و ناظر سمجھا جاتا ہے، اور اس تعزیوں کو بطور تبرک اپنے گھروں میں بعض لوگ رکھتے ہیں، جس سے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں پوری کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا جو سب سے بڑا حق توحید تھا، وہ اس ماہ کے اندر تار تار مسلمان کرتے ہیں، اور اس ماہ کے اندر اللہ کے حقوق پر غصب کرتے ہیں، اللہ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ صرف تعزیہ داری نہیں، بلکہ حضرت حسین کے نام پر جو نوحہ اور ماتم کیا جاتا ہے، سینہ کو بھی کی جاتی ہے، رویا دھویا جاتا ہے، بلکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جس دن روزہ رکھنا چاہیے تھا، اس دن طرح طرح کے حلوے، طرح طرح کے پکوان، طرح طرح کی غذائیں تیار کی جاتی ہیں۔ جس دن روزہ رکھنا نبی کی سنت تھی، اس دن روزے کی سنت کا مذاق اڑاتے ہوئے چوراہوں پر، سڑکوں پر، روڈوں پر سبیلیں لگائی جاتی ہیں، مشروبات پلائے جاتے ہیں، بلکہ بعض اہل حدیث نوجوان بھی جہاں سے وہ قافلہ گزرتا ہے ان کو شربت پیش کرتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو اس گناہ عظیم میں داخل اور شامل کر لیتے ہیں۔ ایسے جلوس کو دیکھنا بھی گناہ ہے، ایسے جلوس میں شرکت کرنا بھی گناہ ہے، ایسے جلوس میں جو لوگ نکل رہے ہیں، ان جلوس والوں کا کسی طرح کا کوئی ساتھ دینا اس گناہ عظیم میں اپنے آپ کو داخل کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں محرم میں حضرت حسین کے نام پر جو کی جاتی ہیں، میں ان ساری چیزوں کی طرف آپ کو نہیں لے جاؤں گا۔ میں ایک اہم چیز جو اللہ کے حق کے بعد جو سب سے عظیم گناہ کیا جاتا ہے، اسلام کی بنیاد کو کھودنے کی اور اسلام کی بنیاد کو کھوکھلا کرنے کی جو اس مہینے میں ناروا کوشش کی جاتی ہے، وہ صحابہ کرام کی مقدس ہستیوں پر کیچڑ اچھالنا ہے۔ یہ صحابہ دین اور شریعت کی بنیاد اور جڑ ہیں۔
अगर इन पर कोई सहाबे किराम पर कोई कीचड़ उछालता है, उनकी नुफूसे कुदसिया पर अगर कोई उंगली उठाता है, तो ये समझ लीजिए कि वो दीन पर उंगली उठा रहा है, वो अल्लाह की जात पर उंगली उठा रहा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकद्दुस और इज्जत और नामूस पर उंगली उठा रहा है। सहाबे किराम की जो हस्तियां हैं, अंबिया के बाद सबसे मुकद्दस हस्तियां हैं, सबसे पाकीज़ा हस्तियां हैं मेरे भाइयों। इस महीने के अंदर सहाबा को गालियां दी जाती है, सहाबा को बुरा भला कहा जाता है। उम्मुल मोमिनीन हैत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर इस महीने के अंदर जो तुहमतों का बाजार गर्म किया जाता है, जिसकी पाक दामनी की इफ़्फ़त और इस्मत की गवाही रब्बुल आलमीन ने सातों आसमान के ऊपर से दी है, रहती दुनिया तक, क़यामत की सुबह तक आपकी पाक दामनी की गवाही कुरान दे रहा है। ऐसे पाकीज़ा हस्ती पर अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले शिया और रवाफिज का साथ देते हुए उम्मुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखियां करते हैं, बल्कि हैचे मुआविया को गाली दी जाती है। मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत वो शख्सियत है, ये जान लीजिए कि जितना हैचे उमर के दौर में इस्लाम फैला, उससे कहीं ज्यादा हैचे वो अमीरुल मोमिनीन मुआविया बिन सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में इस्लाम का बोलबाला था। आप 64 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी किया करते थे, गोया की निस्फ दुनिया आपकी हुक्मरानी में थी, आपके ताबे थी, आपके हुक्म के ताबे थी। आधी दुनिया पर हुकूमत है मुआविया किया करते थे। पूरी दुनिया में जो इस्लाम का झंडा लहराया गया है, उसमें सबसे बड़ा हाथ खलीफे राशिदीन के बाद, खुलफाए राशिदीन के बाद अगर किसी का हाथ है तो मुआविया इब्न सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इन्होंने कैसरो किसरा को ऐसी तकलीफें पहुंचाई, उनकी जड़ों को ऐसे खोखला किया कि आज तक वो दर्द ईसाई और यहूदी भूल नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से हमेशा हर मामले में मुआविया इब्न सुफियान को निशाना बनाया जाता है। यही नहीं, बल्कि मुइज़्ज़ुद्दौला जो शियों का खलीफा था, बादशाह था, उसने जामे मस्जिद के अंदर कई सहाबा के नाम लिखकर उन पर लानत की बद्दुआ की है। सोचिए, सहाबा पर लानत, सहाबा पर बद्दुआ करना, बल्कि शिया का ये नुक्ते नजर है, शिया का ये अकीदा है, जिसमें हमारे नाम निहाद मुसलमान जो अपने आप को सुन्नी और अहलु सुन्ना वल जमा कहते हैं, वो लोग भी इसमें दाखिल हैं, उनका साथ देते हैं इन सारे बदअकीदियों में, गुमराहियों में और सहाबा पर कीचड़ उछालने में। शिया का कहना है कि 3 सहाबा के अलावा सारे मुहाजिरीन सहाबा, अंसारी सहाबा सब के सब मुर्तद हो गए थे। नबी की वफात के बाद दीन छोड़ दिया था, सब काफिर हो गए थे, नऊद बिल्लाह। वो कहते हैं मिक़दाद इब्न अस्वद, सलमान फारसी और अबू ज़र ग़िफ़ारी, इन 3 सहाबा के अलावा सारे सहाबा मुर्तद हो गए थे, नऊद बिल्लाह मिन ज़ालिक। गोया कि अगर इस एतबार से देखा जाए तो जिनको ये इमाम समझते हैं, चाहे वो इमाम अली हो या इमाम हसन हो या इमाम हुसैन हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो, जितने इनके 12 अइम्मा है, गोया कि हते हसन, हुसैन, हते अली इसमें दाखिल हो जाएंगे, नाउद बिल्लाह। ये लोग भी मुर्तद हो गए थे। क्या ये सहाबी नहीं है? ये भी सहाबी है। अगर आपका अकीदा है कि 3 सहाबा के अलावा सारे सहाबा मुर्तद हो काफिर हो गए थे, तो उसमें तो हते हुसैन भी आते हैं, हते हसन भी आते हैं, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत भी आती है, हते फातिमा भी आती हैं, अहले बैत के सारे लोग जितने सहाबी हैं सब उसमें दाखिल हो जाते हैं। ये अकीदा है। सहाबा को बुनियाद क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो दीन फैला है, जो दीन आम हुआ है, जो दीन हम तक पहुंचा है, वो सहाबा के जरिया पहुंचा है। अगर सहाबा की हस्तियां मजरूह हो गई, उनसे एतमाद और भरोसा खत्म हो गया, कोई ये यकीन कर लिया कि हाँ इन्होंने अपनी तरफ से बातें गढ़ करके अल्लाह की तरफ, नबी की तरफ मंसूब कर दिया है, तो गोया कि यहूदी और ईसाई अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे। जब वही
काबिल एतमाद नहीं ठहरेंगे, जिनके जरिए हम तक शरीयत पहुंची है, कुरान और हदीस पहुंचा है, तो शरीयत किस माने की? शरीयत बिल्कुल खत्म। अगर सहाबा के ताल्लुक से इस तरह का अकीदा रखा जाए मेरे भाइयों, इसी वजह से हारून रशीद ने जब एक हदीस गढ़ने वाले वद्दा और कज़्ज़ाब रावी को बुलाया, उसने कई हदीसें सहाबा के खिलाफ गढ़ी थी। सहाबा को गालियां देना, उन पर लान तान करना उसका शेवा था। जब उसको उसकी गर्दन उड़ाने के लिए, उसको सजा देने के लिए है हारून ने बुलाया, उससे पूछा तुम ये आखिर क्यों कर रहे हो, सहाबा की रात को निशाना क्यों बना रहे हो? तो उसने यही जवाब दिया कि ये सहाबा दीन के नाकिल हैं, शरीयत को पहुंचाने वाले, शरीयत को नकल करने वाले यही हैं। जब इन्हीं से एतमाद खत्म हो जाएगा तो दीन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। गोया कि हदीस का कोई एतबार नहीं होगा। जब सहाबा का एतबार नहीं तो दीन का एतबार क्या? उन्होंने दीन को पहुंचाया। तो ये उनका मंसूबा है, ये उनकी प्लानिंग है मेरे भाइयों। इस महीने के अंदर सहाबे किराम को बुरा भला, उन पर लानतें की जाती हैं, उनके खिलाफ बदुआएं की जाती हैं, उनकी जात को निशाना बनाया जाता है। अरे सहाबा का वो मकाम है, सहाबा की वो मुकद्दस हस्तियां हैं, जिनके पाकबाज होने की, जिनके सच्चे होने की, जिनके अमानतदार होने की, जिनके नेक और मुत्तकी और परहेजगार होने की शहादत अल्लाह की रात ने दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस हस्ती ने आपको ये सर्टिफिकेट दिया है सहाबा की रात को कि सहाबा सब के सब सच्चे हैं, आदिल हैं, अमानतदार हैं, तकवा शिआर है, परहेजगार हैं। उनके खिलाफ अगर कोई उंगली उठाता है तो वो मुसलमान नहीं है। मेरे नबी ने सिर्फ सहाबा का सिर्फ इसी वजह से इतना बड़ा मकाम नहीं है कि वो बड़े जाहिद थे, बड़े मुत्तकी थे, बड़े परहेजगार थे, ईमान में मुखलिस थे, बल्कि इस वजह से भी सहाबा को मकाम हासिल है कि आप सहाबा की रात ने, सहाबा की हस्तियों ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का दीदार किया है। उन्होंने आपके चेहरे मुबारक को देखा है। आखिर वो हस्तियां जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देखी हो और उनको देखकर उनको सुकून मिलता रहा हो, उसकी वजह से उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती हो, आखिर वो हस्तियां मुर्तद कैसे हो सकती हैं? आखिर वो हस्तियां जो नबी के एक इशारे पर अपनी जान माल, अपनी औलाद की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते थे, अपने आप को इस बात पर आमादा कर लेते थे कि अगर नबी हमारी जान का मुतालबा करें तो जान का नजराना पेश कर दें, अगर हमारे माल का मुतालबा करें तो माल अल्लाह के रास्ते में लुटा दें, उसको बिखेर दें। वो सहाबा की हस्तियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मुर्तद हो सकती हैं? नबी से इतनी मोहब्बत, नबी से इतना लगाव, आपके फरमान से इतनी शदीद मोहब्बत थी, आपकी सुन्नतों से इतना शदीद लगाव था, क्या वो हस्तियां मुर्तद हो सकती हैं, काफिर हो सकती हैं? नाऊदु बिल्लाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से कहा था, मेरे नबी को मालूम था कि सहाबा किराम के खिलाफ कीचड़ उछाला जाएगा, इनकी इन मुकद्दस हस्तियों को तार तार किया जाएगा, इनकी इज्जत और नामूस को उछाला जाएगा। मेरे नबी ने यह आम फरमान जारी किया, इहफज़ूनी अस्हाबी, इहफज़ूनी फी अस्हाबी, ऐ लोगों मेरे सहाबा के जरिया मेरी हिफाजत करो, यानी मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहो। अहसिनु इलैया अस्हाबी, मेरे सहाबा के लिए हुस्ने सुलूक का मामला पेश करो, मेरे सहाबा के साथ अच्छा मामला, अच्छा बर्ताव करो, अपनी जुबान अच्छी इस्तेमाल करो, अपने आवा व जवारे से कभी भी किसी सहाबी को तकलीफ ना पहुंचाओ। मेरे नबी ने कहा अकरीमो अस्हाबी, मेरे सहाबा किराम के इकराम करो, उनकी इज्जत करो। ये सारे अल्फाज इस बात पर दलालत करते हैं कि सहाबा अपनी आखिरी सांस तक हालत ईमान पर कायम थे। हाज़िरीन गिरामी, सहाबा का वो मकाम है, सहाबा को वो मकाम हासिल है। सईद इब्न ज़ैद जो अशरे मुबश्शरा में से हैं, जिनको इस दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी, वो रावी हदीस है, कहते हैं लमशहदु रजुलिन मिनहुम मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यग़बुरु फीहि वजहुहु खैरुम मिन अमलि अहदिकुम उमरह वलौ उम्रु उम्रु नूहिन। एक पल
किसी भी सहाबी का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक पल रहना, एक लम्हा रहना जिसमें उनके चेहरे पर गर्दो गुबार भी लग गया हो, आप कहते हैं कि तुम्हारी पूरी जिंदगी की इबादत से वो बेहतर और अफजल है। नबी की जात के साथ एक सहाबी का एक लम्हा के लिए उठना बैठना, उनकी सोहबत इख्तियार कर लेना हमारी पूरी जिंदगी की इबादत से बेहतर है। अगरचे उस इंसान को उम्र नूह हासिल हो जाए, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र उसको 950 साल या 1000 साल उसकी उम्र हो जाए, लेकिन नबी के साथ एक लम्हा अगर किसी सहाबी ने गुजारा है, एक पल भी गुजारा है, तो एक पल का गुजारना मेरे नबी के साथ हमारी पूरी जिंदगी की इबादत से बेहतर है। ये सहाबा का मकाम है। मेरे भाइयों, अब्दुल्लाह बिन उमर की वो हदीस मशहूर आप बार बार सुनते हैं। आप कहते हैं ला तसुब्बु अस्हाबा मुहम्मद, अस्हाबे मोहम्मद को, सहाबे किराम को गालियां मत दो, उनको बुरा भला ना कहो, उनकी इज्जतों नामूस के साथ मत खेलो, उनकी इज्जतों को तार तार मत करो। फला मुकाम अहदिहिम साअतुन खैरुम मिन अमल अहदिकुम 40 सना। सुनो, एक लम्हा नबी के साथ खड़ा होना किसी सहाबी का तुम्हारी 40 साल की इबादत और रियादत से बेहतर है। ये सहाबा का मकाम है। ऐसे सहाबा को गालियां दी जाती हैं, ऐसे सहाबा की शान में गुस्ताखियां की जाती हैं, ऐसे सहाबा को मुर्तद और काफिर नाउज़ बिल्लाह करार दिया जाता है। क्या मेरे नबी को इल्म नहीं था? क्या मेरे नबी को इस बात का इल्म नहीं था? इल्म नबी को नहीं था तो क्या रब्बुल आलमीन को नहीं था? जो रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद, जो आखिरी किताब है, क़यामत की सुबह तक ये किताब बाकी रहने वाली है, उस किताब के अंदर रब्बुल आलमीन ने 7 आसमानों से एक गवाही दी, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अन-नारु खालिदीन फीहा अबदा। अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी हो गए, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत तैयार करके रखी है। क्या रब की जात को इस बात का इल्म नहीं था कि ये नाउज़ बिल्लाह मुर्तद हो जाएंगे और उनके लिए अल्लाह ने जन्नत तैयार कर रखी है? अल्लाह उनसे राज़ी हो गया जो मुर्तद हो गए। शरीयत ने तो इस मुर्तद की सजा कत्ल करार दिया है। हाज़िरीन गिरामी, अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्लाह इमामुल मुत्तकीन फरमाते हैं, कहते हैं वल्लाह इन्नल गुबार अल्लज़ी दखल फी अनफी फरस मुआविया मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लु मिन उमर बिअल्फ़ि मर्रा। ये कौल बहुत अजीम कौल है जो उमर बिन अब्दुल अजीज को मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर फजीलत देते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज बड़े नेक थे, बड़े पारसा थे, बड़े आबिद थे, बड़े जाहिद थे, बल्कि खुलफाए खमसा में उनको शुमार किया जाता है। बड़े मुत्तकी और परहेजगार थे, बड़े इंसाफ परवर हाकिम और बादशाह थे आप, लेकिन फिर भी वो सहाबी नहीं थे। बाद लोग उमर बिन अब्दुल अजीज को मुआविया से अफजल करार देते हैं। सुनो, जो मुआविया को गालियां देते हैं, जो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे अजीम सहाबी को बुरा भला कहते हैं, जो इन पर लानतें भेजते हैं, सुन ले, उमर अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का कौल सुन ले। आप कहते हैं अल्लाह की राज की कसम, मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घोड़े की नाक में जो गुबार दाखिल हुआ है, वो गुबार उमर बिन अब्दुल अजीज की पूरी जिंदगी की इबादत से 1000 मरतबा बेहतर है। ये मकाम है एक सहाबी का। मुआविया के घोड़े की नाक में जो गर्दो गुबार अल्लाह के रास्ते में दाखिल हुआ है, उमर बिन अब्दुल अजीज की इबादतों से 1000 मरतबा वो बेहतर है। वो गर्दो गुबार भी उससे अफजल है। क्यों? आप कहते हैं सल्ला मुआविया तु खल्फ रसूलिल्लाह, मुआविया ने है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें पढ़ी हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो नमाजें पढ़ी हैं, गोया कि जितने भी सहाबा थे नबी की दुआ के मगफिरत के रहमत के मुस्तहिक ठहरे हैं, उन पर रहमतें नाजिल होती हैं, अल्लाह की मगफिरत का ऐलान उनके लिए हुआ है। और आप कहते हैं फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समी अल्लाहु लिमन हमिदा, नबी जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते थे तो मुआविया पीछे से रब्बना वलकल हम्द कहते थे। फमा बअद हादा शरफुल आज़म, इतना अजीम शर्फ जिस सहाबी को मिला है
اس صحابی سے آپ عمر بن عبد العزیز کو افضل قرار دیتے ہیں. یہ صحابہ کا مقام ہے, یہ صحابہ کی نفوس قدسیہ ہے جن کے خلاف طرح طرح کی باتیں آج کی جا رہی ہیں. میں نے کہا صحابہ کو جو تنقید کا نشانہ بناتا ہے, دراصل صحابہ پر تنقید اسلام پر تنقید ہے, صحابہ پر تنقید قرآن پر تنقید ہے, صحابہ پر تنقید سنت پر تنقید ہے, صحابہ پر تنقید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر تنقید ہے, صحابہ پر تنقید رب العالمین کی ذات پر تنقید ہے. آپ جان لیں اسی بنیاد پر رب العالمین نے بھی صحابہ کی طرف سے دفاع کیا ہے. جب کسی صحابی کو کسی نے کچھ کہا, ساتوں آسمان کے اوپر سے اللہ عرش پر مستوی ہے, وہاں سے اپنے محبوب اور پیارے صحابیوں کا دفاع اللہ کی ذات نے کیا ہے. آپ کہتے ہیں صحابہ مرتد ہو گئے تھے, اللہ دفاع کر رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. یہ منافقین کی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے کہتے ایمان لے آؤ, ایمان لے آؤ, اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ, وہ لوگ کہتے کہ کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء, جس طرح یہ بیوقوف لوگ آپ پر ایمان لے آئے ہیں ہم لوگ بھی اس طرح ایمان لے آئے. یہ صحابہ کرام کی مقدس ہستیوں کو منافقین بیوقوف کہا. اللہ نے کہا الا انہم ہم السفہاء, خبردار یہ لوگ بیوقوف ہیں, یہ حقیقت میں بیوقوف ہیں, ان کو اس بات کا علم نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ان کے لیے وعیدیں بیان کی ہیں. اللہ رب العالمین نے دیکھیے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ, ایک نابینا صحابی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن خاص عبداللہ بن ام مکتوم کو کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہوتا ہے, کوئی نصیحت حاصل کرنی ہوتی ہے. ایک بیچارے نابینا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں. آپ اشراف قریش کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں, دین کی طرف بلا رہے ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم کی طرف توجہ نہیں دی. انہوں نے آپ کو پکارا, آپ نے توجہ نہیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ بھئی یہ اشراف قریش ہیں, قریش کے سردار ہیں, اگر یہ لوگ میری بات مان لیں تو پورے قریش والے ایمان لے آئیں گے. اس وجہ سے آپ ان کو سمجھانے میں, دین کی طرف دعوت دینے میں مشغول رہے. عبداللہ بن ام مکتوم کی طرف توجہ نہیں دی. یہ ایک صحابی ہیں اور اس طرف کفار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اللہ کو پسند نہیں آئی. اللہ نے سورہ نازل کی, سورہ عبس کی ابتدائی آیتیں دیکھیں. اللہ نے کہا عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ لگائی. ایک نابینا صحابی آپ کے پاس آتا ہے, شاید وہ نصیحت حاصل کرے, اسے نفع پہنچے اس نصیحت سے, آپ اسے اعراض کرتے ہیں. فانت عنہ تلہا کلا انہا تذکرہ, خبردار یہ نصیحت ہے. آپ سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر کوئی ان کی حقارت نہیں کہ ان کو حقیر نہیں سمجھا کہ ایک معمولی صحابی ہے, نعوذ باللہ. آپ کا یہ نظریہ تھا کہ یہاں سردار لوگ بیٹھے ہیں, ان کو اگر دین کی طرف بلانے میں, دین کی دعوت دینے میں کامیاب ہو گئے تو سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. لیکن اللہ کو یہ ادا پسند نہیں. اللہ نے فوراً عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی, آپ کی طرف سے دفاع کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ آپ سب کو معلوم. حضرت عائشہ پر جب تہمت لگائی گئی منافقین کی طرف سے, 2-3 صحابہ بھی اس میں ملوث ہو گئے. اللہ رب العالمین نے قرآن سورہ نور میں آیت نازل کر دی, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا. ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کی بشارت سنائی ہے جو حضرت عائشہ پر, مومنین پر تہمت لگاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے دفاع کیا حضرت عائشہ کی طرف سے اور دیگر صحابہ کی طرف سے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کی طرف سے بارہا دفاع کیا. حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابی ہیں, غزوہ بدر میں آپ شریک ہوئے, لیکن جب فتح مکہ کا مسئلہ آیا,
मक्का की तरफ चढ़ाई का मसला आया तो इनके परिवार, इनके खानदान वाले, इनके घर वाले मक्का में थे। इनको ये ऐसा लगा कि मैं अपने घर वालों को बाखबर कर देता हूं ताकि वो लोग बच जाएं। उनकी नीयत अच्छी थी, नबी के राज को फाश करना नहीं था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जब ये बात मालूम हुई, आपने कहा दानी अदरिबु उनक़ हाज़ल मुनाफिक, अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दीजिए इस मुनाफिक की गर्दन में उड़ा देता हूं। आपने कहा सुनो उमर, इन्नहु क़द शहिद बदरा, वो ग़ज़वे बदर में शरीक हुए हैं। वमा युदरिक, तुम्हें क्या पता, लअल्लल्लाह अन यकून क़द इत्तला अला अहली बदरिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले बद्र को मुताल्लिक कहा, अहले बद्र के मुताल्लिक अल्लाह ने कहा इअमलू मा शिअतुम क़द गफ़रतु लकुम, ऐ बदरी सहाबियों जो चाहो आज के बाद करो, मैंने तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया है। तुम उसको मुनाफिक कहते हो, तुम उसको मारने पर तुले हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने सहाबियों का दिफा किया। गामिदिया जो औरत थी जिससे बदकारी सरसद हुई, जब वो रजम की जा रही थी, हैते खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक पत्थर मारा जो उनके सर पर लगा और खून उछल करके उनके कपड़े पर लग गया। हैते खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बुरा भला कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा महलन या खालिद, ऐ खालिद रुक जाओ, कंट्रोल करो, खामोश हो जाओ। फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही लक़द ताब तौबतन लौ ताब साहिबु मक्सिन लगुफिर लहू, इसने ऐसी तौबा की है, इसने ऐसी तौबा की है। बाद रिवायतों में आता है कि अगर एक कबीले में उसकी तौबा को तकसीम कर दिया जाए तो सारे लोगों की मग़फ़िरत हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की तरफ से दिफा कर रहे हैं, बल्कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटा। जब हज़रत बिलाल को और दूसरे सहाबियों को, सुहैब और सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन को आपने कुछ कहा, आपने डांटा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या अबा बकर लअल्लका अग़ज़बतहुम लइन कुन्ता अग़ज़बतहुम लक़द अग़ज़बत रब्बक, ऐ अबू बकर शायद तुमने मेरे इन सहाबियों को गुस्सा दिलाया है, उनको नाराज किया है। सुनो, अगर तुमने इनको गुस्सा दिलाया, इनको नाराज किया, इनको तकलीफ पहुंचाई है, तो तुमने अपने रब को गुस्सा दिलाया है। मेरे नबी सहाबा का दिफा किया करते थे, जिनको आज लोग मुर्तद और काफिर नाउज़ बिल्लाह कहते हैं, जिनको गालियां दी जाती हैं, जिनकी शान अक़दस में गुस्ताखियां की जाती हैं। हाज़रीन गिरामी, बातें बड़ी तवील हैं। सलफ और अकाबिर उलमा से जो आसार मनक़ूल है, बल्कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तो कहते हैं इय्याका व शत्म अस्हाबी रसूलिल्लाह फयकुब्बकल्लाहु फिन्नारि अला वजहिका यौमल क़ियामा, जो सहाबा को गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, कल चेहरे के बल अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको घसीट कर जहन्नम में फेंक देगा। इमाम मालिक कहते हैं अल्लज़ी यश्तुबु अस्हाबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा लहु नसीबुन फिल इस्लाम, जो सहाबा किराम को बुरा भला कहता है, उनकी शान में गुस्ताखियां करता है, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं। इमाम अहमद कहते हैं जब तुम किसी को देखो कि सहाबा में से किसी सहाबी का बुरे तौर पर जिक्र कर रहा है, आपने कहा फत्तहिमहु अलल इस्लाम, तो उसके इस्लाम को मुत्तहम समझो, वो मुसलमान नहीं है। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा को गाली देता है, उनके बारे में लान तान करता है, फ़क़द ख़रज मिनद्दीन व मरक़ मिन मिल्लतिल मुस्लिमीन, वो इस्लाम से निकल जाता है, वो इस्लाम से निकल जाता है, इस्लाम से खारिज हो जाता है मेरे भाइयों। लिहाजा सहाबा किराम के बारे में बुरा सोचना, सहाबा किराम को बुरा भला कहना, सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी करना और सहाबा किराम के जो आपसी मुआमलात हैं बतौरे सुखरिया, बतौरे मजाक उसको जिक्र करना, ये अपने ईमान को खतरे में डालना है। आप समझ लें, इमाम इब्न उथैमीन रहमुल्लाह कहते हैं सहाबा को जो गाली देता है तो सहाबा को गाली देता ही है, उसके साथ साथ गोया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गाली देता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गाली देता है। लिअन्नल इंसान अला दीन खलीलिही, क्योंकि एक इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। अगर सहाबा नबी के दीन पर थे, अगर सहाबा को बुरा भला कहा जा रहा था, तो गोया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो भी गाली दी जा रही है, आपको भी बुरा भला कहा जा रहा है। अगर कोई सहाबा को बुरा भला कहता है
تو شریعت کو برا بھلا کہتا ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ انہی کے راستے سے ہم تک پہنچی ہے۔ اور صحابہ کو اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے گویا کہ وہ رب العالمین کو گالی دیتا ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ رب العالمین نے ان نفوس قدسیہ کو امام الانبیاء کے لیے چنا اور منتخب کیا ہے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے ان صحابہ کرام کی ذات کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا ہے، اللہ کی ذات نے انتخاب کیا ہے۔ اگر صحابہ کو برا بھلا کوئی کہتا ہے تو گویا کہ وہ رب العالمین کو گالی دے رہا ہے۔ امام طحاوی رحم اللہ نے اسی وجہ سے سلف کا عقیدہ بیان کیا، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں حبہم دین و ایمان و احسان، صحابہ سے محبت کرنا یہ دین ہے، یہی ایمان ہے اور یہی احسان ہے۔ وبغضہم کفر و نفاق و طغیان، اور صحابہ کرام سے بغض رکھنا، کینہ رکھنا، حسد رکھنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کو لعن طعن کرنا، یہ کفر ہے، نفاق ہے، سرکشی اور ظلم و زیادتی ہے۔ لہذا صحابہ کرام کی ہستیاں بڑی مقدس ہستیاں ہیں، بڑی پیاری ہستیاں ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سرٹیفکیٹ خود نازل کی قرآن میں، جو قیامت کی صبح تک ایک مسلمان اس کو تلاوت کرے گا، اس کو پڑھے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جیسی شخصیت ہے، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیوں کا اکرام اور ان کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو ہمارے صحابہ کرام کی مقدس ہستیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا۔ اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔